اور اب ہم چلتے ہیں اپنے صدر محترم کی طرف. سر تھوڑا سا تو مجھے بولنے دیجیے. زیادہ نہیں بولتا تھا. آپ کے بارے میں میں صرف ایک شعر سے تو آپ کو بلا سکتی ہوں یہاں پر. اتنا میں نے دیکھیے سر کے بارے میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ویل نون سوشل سائنٹسٹ ہیں اور علمی اور ادبی کاموں میں ہر وقت فعال. آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی سے سوشل اینتھروپولوجی میں پی ایچ ڈی کیا, وہاں لیکچرر اور پھر اس کے بعد ریڈر, پھر پروفیسر رہے. یو ایس اے کی مختلف یونیورسٹیز میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. آپ کی اتنی ساری کتابیں ہیں, اتنا کام ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں یہاں پر کیونکہ سر نے منع بھی کیا ہے اس لیے. لیکن ٹرائبل انڈیا جس کی 12 ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو سر سول سروسز سے بھی جڑے ہیں اور سر جو ہیں ہمیشہ سماجی مدعوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے بہت فعال ہیں. صرف ایک شعر کے ساتھ سمجھ چاہیے. زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ, زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ, وہ آسمان ہے اور سر جھکا کے ملتا ہے. ندیم حسین سر. آپ سب کو آداب. جب ہمارے نلین جی نے سارا وقت سرنڈر کر دیا اپنا, اتنا میری کیا ہستی ہے کہ تو میں بہت مختصر میں وقت بھی کافی ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سعید مہدی صاحب کا کہ جب انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ صدارت کے لیے تو مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں پروفیشنلی تو کوئی ساہتکار بھی نہیں ہوں, میں تو سوشل سائنس کا ہوں. میں تو اور نلین جی اور ویو پرکاش جی اور شام صاحب جیسے لوگوں کے بیچ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ, لیکن میں سائنس کے پریمی ضرور ہوں اور آپ لوگوں کی صحبت میں رہ کے تھوڑا بہت پڑھتا لکھتا بھی رہتا ہوں سائنس کے بارے میں. تو چونکہ یہ کیفی آدمی اکیڈمی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو میں بار بار مجھے ان کا اس غزل کے وہ ایک دو شعر یاد آ رہے تھے کہ بڑے حسب حال بھی ہیں, جو کہ ذکر حق اتنا مختصر بھی نہیں, ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں, اور عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں, اب تو کاندھے پہ میرے سر بھی نہیں. تو جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں اور بڑے جوشیلے انداز میں سب باتیں ہوئیں ہمارے ساتھیوں نے جو کی, تو بار بار ہم کو یہ شعر ضرور یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ اب عادتاً بھی اب آ رہے ہیں, بھلے ہی ہمارے کاندھے پر سر نہ ہو, لیکن ہم آئیں گے بنا سر کے بھی لڑیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بہت سی باتیں جو میرے ذہن میں بھی یا جو بھی ترقی پسند تحریک کے بارے میں لوگ لکھتے پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں رہتی ہیں, اس پہ بہت سی باتیں کہی بھی جا چکی ہیں, بہت سی میرے لیے نئی بھی باتیں تھیں اس میں. اور لیکن ایک بات جو نہیں آ سکی وہ میرا خیال ہے کہ وہ سلپ ہو گئی ہوگی دماغ سے, وہ یہ کہ اس کا بیج جو ہے وہ انکولت کہاں پر ہوا. تو وہ ایک سوشلسٹ سوویت یونین کہ جب ادے ہوتا ہے تو وہ سینکڑوں سال کا جو مانو سپن تھا, جو اس کا خواب تھا دیکھا ہوا کہ شوشت ونچت ورگوں کا ایک وہ سماج کیسے تبدیل ہوگا, کیسے اس کی زندگی بہتر ہوگی, کیسے سماجی انصاف ہوگا, کیسے نابرابری ختم ہوگی, تو یہ ایک بہت بڑا خواب تھا. تو اس سوشلسٹ سوویت یونین کا ادے جو تھا, جب وہ ہوتا ہے تو وہ پیڑھی ہماری جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک سے جڑی, اس کے بہت سے لوگ بھلے ہی چاہے اس وقت نوجوان بھی رہے ہوں, بچے رہے ہوں 1917, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ خواب پہنچا ان تک کو, اور ان کے رگوں میں وہ جوش پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم کو چاہیے ہوگی.
यहाँ पर मैं आपको अपना एक निजी अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। 7-8 साल पहले की बात है, मैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं इंग्लैंड गया हुआ था। तो लंदन में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे मालूम था कि मार्क्स वहीं दफन हैं, तो मैंने ढूंढ ढांड के किसी तरह से मैं उनके मज़ार पर पहुंचा और मेरे जीवन का एक मेमोरेबल मतलब क्षण था वो। वहाँ पर जाना, मैं देर तक बैठा रहा वहाँ, आधे घंटे तक करीब वहाँ पर, और वो एक काले एक स्टोन के ऊपर उनका बस रखा हुआ था और नीचे वो जो कोटेशन जो हमको आज भी हमको तहरीक देता है कि दुनिया भर के दार्शनिकों ने दुनिया के बारे में बताया तो है, अब समय आ गया है कि हम बात करें उसको बदला कैसे जाए। तो ये बदलने की जो बात थी, यही तरक्की पसंद तहरीक का बीज था ये, कि हम बदलेंगे चीजों को। और हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था? इंस्पिरेशन सोवियत यूनियन की उस रिवोल्यूशन से मिल रहा था जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ। अब वो अलग बात है कि शुरू के लोग चूंकि बहुत ज्यादा उत्साहित थे इस मामले में और नई नई कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी, सब था, तो बहुत से लोगों में ये हुआ कि नहीं, एक तरक्की पसंद को जो है वो कम्युनिस्ट होना जरूरी होता है। हालांकि बाद में उसको उन्होंने सही भी किया और कहा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मार्क्सवादी होंगे तभी हम तरक्की पसंद होंगे, लेकिन हर मार्क्सवादी तरक्की पसंद जरूर होता है, ये बात तो सही है। लेकिन जो गैर मार्क्सवादी भी है वो भी तरक्की पसंद हो सकता है। ऐसे बहुत से उर्दू हिंदी में नए कितने लेखक कवि आप देख लीजिए जिनको आप तरक्की पसंदी के दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हालांकि बिल्कुल मार्क्सवादी नहीं है। तो इस तरह से जो तरक्की पसंदी को मेन स्ट्रीम करना जो था वो एक बहुत उम्दा ट्रेंड था इस पूरे सफर में। जब ये बार बार बात आ रही थी कि हम खासतौर से हमारे जो साथी वी प्रकाश सिंह जी जो कह रहे थे कि वो किस तरह से जो मीर की बात कर रहे थे कि वो उस जमाने में मीर किस तरह की बात कर रहे थे, तो मुझे गालिब का बार बार एक मिसरा याद आ रहा था। मुझे लगा कि इससे बेहतर मेरे दिमाग में, जो मैंने बहुत कम पढ़ा हुआ है अदब में, लेकिन मेरे दिमाग में इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं आ रही जब वो गालिब कहते हैं कि मैं अंदलीवे गुलशने नाफरीदा हूँ, यानी मैं उस गुलशन का, उस बात का मैं बुलबुल हूँ जो अभी बना ही नहीं, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आप बताइए कमाल का मतलब ये गालिब कह रहा है उस वक्त से, क्या मतलब आज से कितने दिन पहले वो आदमी कह रहा है कि मैं एक ऐसे बाग का बुलबुल हूँ जो बाग अभी बना ही नहीं, बनेगा अभी। वो हमको एक सपना दे रहा है, उनको ख्वाब दिखा रहा है हमको। तो ये जो तरक्की पसंदी की पूरी जो तरक्की पसंद तहरीक जो पूरी थी, उसका जब हम मैनिफेस्टो देखें उसका, तो उस मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें वो छुपी हुई हैं जो पता नहीं क्यों खुल के हमारे इन तमाम सम्मेलनों में और गोष्ठियों में नहीं कही जा रही है। मैंने नहीं सुनी, जितने मैंने अटेंड किए हैं, नरेंद्र रंजन जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे इसके बारे में। यानी जो वो स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस और साइंटिफिक रैशनलिज्म, ये मैनिफेस्टो में है उसके लिखा हुआ। जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं और रैशनलिज्म की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं, तो जो रैशनलिटी है, जो तार्किकता है, तर्कवाद है, जो इसका मतलब यह हुआ कि आपके लिए तरक्की पसंद होने के लिए जरूरी है कि आप रैशनलिस्ट भी हो। इसलिए कि अगर आप रैशनलिस्ट नहीं है, अगर आप हैं, तो फिर आप सीधे अंधविश्वास के गार में गिर जाएंगे जाके, उससे कोई बचा नहीं सकता। फिर उसको आपको तार्किकता आपके होनी ही पड़ेगी। तरक्की पसंदी के लिए मेरे हिसाब से उसकी जरूरी शर्त है उसके लिए। अब ये फैज को भी आपने बहुत कोट किया आपने। मेरा ख्याल है कि ये बात शायद फैसल आपने कही थी कि उनमें फैज की तरक्की पसंदी में रोमांस और इनकलाब
जो है वो यहाँ तो मुझे याद पड़ रहा है कि आप ही ने शायद कही थी या किसी और ने कहा, आपने कहा, तो दोनों हैं। फैज़ मेरे भी हज़ारों लोगों की तरह मेरे भी बड़े फेवरेट शायर हैं, और किसी ज़माने में मुझको फैज़ का ऑलमोस्ट आधा कलाम ज़बानी याद हुआ करता था। तो फैज़ को मैं सूफी मार्क्सिस्ट के तौर से मैं मानता हूँ। ये बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ये, सूफी मार्क्सिस्ट। और जिस तरह से रोमांस और इनकलाबियत और रोमानियत को जैसे फैज़ ने मिलाया, जैसे आप उनके ये शेर, जब उस गज़ल के जो शेर आप ये कथा है जो पढ़ते हैं आप, कि बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, और चमक उठे हैं सलासिल तो हमने जाना है कि अब शहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे नाज़िम हिकमत की याद आ रही थी बात, हो जो तुर्की का मशहूर इनकलाबी शायर, जो उसकी वाइफ ने शिकायत उससे किया कि अब आप तो जेल में रहते हैं, तो मुलाकात के जो है वो अब मौके बहुत कम ही मिलते हैं। तो नाज़िम हिकमत ने एक बड़ा एक नॉवेल सजेशन दिया, उसमें नॉवेल्टी बहुत थी उसमें। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम ऐसा करो कि रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। तो इस तरह से मैं जो जेल की सोबतें हैं, जो मुसीबतें हैं, उससे मैं भी आज़ाद रहूँगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाया करेगी इस तरह से। तो कई बार मुझे जब मैं फैज़ को पढ़ता हूँ, ख़ासतौर से जिंदा नामा की उनकी जो नज़में हैं या गज़लें उनकी हैं, तो मुझे नाज़िम हिकमत भी याद आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये सारे लोग किसी एक जगह पर कन्वर्ट होते हैं जाके। अब आज अगर हम बड़ी मायूसी के बाद, हमारे मेहदी साहब बड़ी मायूसी की बात कर रहे थे कि भाई तरक्की देरी का क्या हो रहा है, मैं उतना मायूस नहीं हूँ, मायूसी की बात नहीं, तो वो कमजोर शिद्दत पसंदी के खिलाफ। हाँ, और उसकी मुझे लगता ये है कि जो एक तहरीक के तौर के ऊपर अगर थोड़े से हम कमज़ोर हुए, जैसे साथी नलीन ने भी कहा कि हम बिखराव हमारे में बहुत इस वक्त है, उसके अलावा जो वजह है कि जिस तरह से पूंजीवाद हमारे यहाँ आया है, और हमारे समाज की ट्रेजेडी इस वक्त ये है कि हम एक फ्यूडल समाज रह नहीं पाए हैं, और अभी हम एक कैपिटलिस्ट समाज बन नहीं पाए हैं। हम कहीं जैसे वो मैथोलॉजी के ऋषि त्रिशंकु हुए, उसकी तरह हम कहीं हवा में बिल्कुल लटके हुए हैं। अगर ये बिल्कुल मुकम्मल कैपिटलिस्ट समाज में हो जाता तो शायद उससे बेहतर हालत होती। तो बड़ी अजीब बात ये है। तो उसके साथ ही जो है वो जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, तमाम कॉर्पोरेट्स आए हैं, जो हमारी जो ये व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ने जिस तरह से कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया है, उपभोक्तावाद को, कंज्यूमर कल्चर को जिस तरह से उसने बढ़ावा दिया है, और जिस तरह से मिडिल क्लास, उसने पहले मिडिल क्लास फंसा, उसके बाद दूसरे फंसे नीचे वाले, तो वो चीज़ें बहुत धुंधला गई हैं, बहुत सी चीज़ें। तो हमें मुकाबला जो करना है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो जो बातें आपने कही बिल्कुल सही हैं, किस तरह से उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन सोशल और कल्चरल लेवल के ऊपर ज़्यादा मुकाबला हमको कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर कल्चर का करना चाहिए। हमको मुकाबला जिसने इंसान को कमोडिटी बना दिया है, उसका कमोडिफिकेशन कर दिया है इंसान का, उसकी इंसानियत उससे छीन रहा है उससे। ये सारी बहुत सी बातें हैं, ये भी बिखरी हुई हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद भी जब हम अपनी यंगर जनरेशन को देखते हैं, और ख़ासतौर से वो लोग जो अभी 30s में या 40s में इस तरह से हैं, जब हम उनको देखते हैं और जब हम उनकी बातें सुनते हैं, तो हमको लगता है नहीं, हमारी मायूसी गलत है हमारी। इसलिए कि अगर ये दौर इतने ही अगर ख़राब होता तो ये कैसे बोल रहे हैं उसके अंदर, वो जो हमसे 40 साल छोड़ रहे हैं कम से कम,
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ مایوسی اور ناامیدی کے جو گرد ہے وہ جھاڑ کے ہم کو ایک بار پھر سے اٹھ کھڑا ہونا ہے. اور ہم تو ہمیشہ سے ہمارا نعرہ یہ رہا ہے کہ لڑیں گے جیتیں گے. شکریہ.